السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، میرے تیسرے مہمان ہیں جناب فیصل حمید صاحب جو ہیں یہ ایچ کے بزنس نیٹ ورک کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ صدر ہے، یہ فاؤنڈر بھی ہیں یہ ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور یہ سماجی کام بھی بہت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شپنگ کے کاروبار سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے ملک کی معیشت کا۔ یہ فیصل حمید صاحب، آپ کیا سیکنڈ کریں گے ان دونوں کی باتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے تو بلال بھائی بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ تھینک یو۔ ان کی بات کو شکریہ آپ کا کہ آپ آ گئے۔ نہیں، اصل میں تھوڑی سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کام کرتے چلے آ رہے تھے تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پریشانیاں کافی 2 سالوں سے رہی تھی۔ یہی حالات کے پیش نظر آپ کو پتا ہے ایک مڈل کلاس تو بالکل ہی مر گیا۔ اب تو کوئی مڈل کلاس، میں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ساتھ ان کی بات جوڑتا چلوں گا کہ مڈل کلاس اب بچا نہیں ہے، اب یا تو لوور ہے یا اپر ہے۔ وہ جو جس کو ہم لوور کلاس کہتے تھے نا، وہ تو اب یہ نہیں کہ سمجھے کہ ایسے پہ آ گیا ہے کہ روز جینا روز مرنا اور ان کا کیا کہنا۔ تو اس پر جو مڈل کلاس ہے نا وہ بالکل آگے لوور کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اپنے مڈل کلاس کے بعد زیادہ تر۔ اب بات اصل میں یہ آ رہی تھی کہ پرابلمز آ رہی تھی کہ کس طریقے سے سروائیول کریں۔ اب کوئی بھی مشکل پریشانی ہو، آپ کو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں ہے نا تو آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں بچا سکتے۔ تو ہم نے تھوڑا سا یہ چیزیں کری کہ ہم نے روزگار کے اوپر پچھلے 1 سال سے کام کر رہے تھے۔ اب ہم نے چیزیں کری کہ ہم نے ایک بزنس کمیونٹی فورم کا جو ہے وہ ہم نے ایک ترمیم کیا، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے وہی مڈل کلاس لوگوں کو ہم نے ساتھ رکھا کہ بھائی ایک دوسرے کے کام کو پروموٹ کریں، سپورٹ کریں اور مل کے سلوشن کی طرف جائیں اور مل کے کام کریں، اور اس سے جو کوئی بھی ارننگ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہمارا کار خیر ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ تو سماجی کام بھی بہت کرتے تھے ماشاءاللہ، لوگوں کو راشن بانٹنا، یہ کرنا ماشاءاللہ۔ آپ ایک وہ تاجر ہیں جو یقینی طور پہ جو مستقل افراد ان کی طرف، تو ان کی کیا صورتحال ہے کہ کیا مانگنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ سر ابھی تو آپ یہ اس چیز پہ آ جائیں کہ جو ان کو سپورٹ کرنے والے تھے نا ان کا کیا حال ہے، ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں سر۔ میں نے کہا نا کہ یہ تو ہر دفعہ میں ہوتا چلا رہا تھا، جتنی مرتبہ آپ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا تھا یار پچھلا مہینہ اس مہینے سے جو ہے کافی اچھا تھا، یہ مہینہ تو بالکل خراب ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹیکسز کے اوپر جیسے بات ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ کسی ایک جگہ تو بیٹھے نا، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، ایسا ٹیکس آج کچھ نہیں ہوا تو شادی میرج ہالوں پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا کہ بھائی شادیاں ہی کم کر دو، لیکن اس سے یہ نہیں دیکھا کہ جو الائٹ جو آپ کی جو اپنے انڈسٹری ہوگی، جو الائٹ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ فرق پڑے گا۔ صرف یہ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسرافیہ میں چلا جاتا ہے، اسراف میں چلا جاتا ہے، شادی میں بڑا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یار اس سے آپ دیکھو تو کتنے گھر چلتے ہیں۔ ابھی صورتحال اور خراب ہے سر، وہ بالکل بات ہو جاتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بس اللہ کا شکر ہے، لیکن میں کیونکہ بیٹھا ہوا اسی جگہ پہ مجھے یہ حقیقت بولنی پڑے گی، ورسٹ ہو گیا، ورسٹ ہو گیا نا، بہت ورسٹ ہو گیا۔ مطلب اب جو امداد دینے والے تھے وہ بھی بیچارے جو ہے وہ کرائسس میں آ گئے۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں کہیں کسی کی بات نہیں کرتا۔ میں پچھلے 4 سال سے سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن چلا، بالکل مجھے پتا ہے، ہم کراچی کی نام سے کاروبار بھی کر رہا ہوں، کاروباری لوگوں کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے شہر کے لیے، اپنے گلی محلے کے لیے، اپنے کراچی والوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ میں 4 مہینے سے میں خود پریشان ہوں سر۔ جو بجلی کا بل، یہ مجاہد بھائی نے صحیح کہا، جو بجلی کا بل 25-30 ہزار روپے تھا، آج وہ 60-65 ہزار کے اوپر کھڑا ہو گیا، اور مسجد ابھی سے 82 پیسے اور یونٹ بڑھا دیے۔ وہ تو بڑھا دیا۔ اب یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے آپ کی آمدنی تھی تو آپ سمجھیں کہ اس میں سے 10-15-20 ہزار روپے یوٹیلیٹیز میں چلے جاتے تھے۔ میں ذرا بات کروں گا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، گفتگو سفر جاری ہے، یقینی طور پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے اور جو مسائل اس کا حل بھی سوچیں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا، مجھے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج جو ایس ایم ایز کے 3 نمائندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اتنے زیادہ مجھے اندر سے مطلب کہ جو شعلہ ہے وہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں قابو کر کے جو اپنی باتوں کو کر رہے ہیں تو آپ نے سنی۔ جی فیصل بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے، اور بھی کیا تاجر برادریوں میں آپ کیا کہیں گے کہ جناب کہ یہ جو تاجر دوست اسکیم آئی، یہ تاجر دوست اسکیم سے لوگ مطمئن تھے یا نہیں تھے؟ وہ میں ان سے بھی پوچھوں گا، عالم صاحب سے بھی اور مجاہد بھی۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا تاجروں میں جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں
उन एसोसिएशंस में क्या 99% लोग टैक्स देते हैं या उनमें से भी बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते? तो देखें, ये तो फिगर्स जो है ना उसके ऊपर हम जाते हैं, तो हम बाद में मेरे कहने के ऊपर ना जाए ना, फिगर्स के ऊपर जाते हैं। 1 ट्रिलियन टैक्स कराची से जमा हुआ, ठीक है। 1885 अरब रुपए इस दफा जमा हुआ है कराची से। सही है। अब बात यह है कि फिर आप बात करते हैं कराची जो है वो 60% देता है, 65% देता है, तो ये टैक्स आ रहा है ना बॉस, जा कहाँ रहा है ये नहीं पूछ रहे, लेकिन आ रहा है ना, इसका मतलब है टैक्स दे रहे हैं। नहीं, ये जो हुकूमत ये कहती है कि बहुत सारे ताजिर टैक्स देना नहीं चाहते या मतलब ये कि दानिश दोस्त स्कीम में नहीं आना चाहते। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, चूंकि आपको तो इंपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते उसमें तो डायरेक्ट कट जाता है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, देखें अभी ये चीजें आएंगे, 4 महीने तक एक्सपोर्ट बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। एक्सपोर्ट क्या हुआ? वो वाला जिसके ऊपर आपको कोई फायदा ही नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, नंबर 1। आप खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर देते हो यार, यहाँ पे 150 किलो जो है अपने क्या नाम है प्याज चल रही है, 250 किलो 300 किलो अपने टमाटर चल रहा है, फिर कहते हैं महंगाई कम हो गई, ठीक है। आप पेट्रोल के पैसे बढ़ा देते हो, लाख के ऊपर जो है इंडेक्स जा रहा है, ठीक है, आपका डॉलर 278 के ऊपर खड़ा हुआ है। मुझे वो इकोनॉमिक्स की किताब ला के देते भाई, मैंने तो पढ़ के फाड़ के फेंक दी कि यार मैंने बिला वजह पता नहीं क्यों पढ़ा मैंने, ये कौन सी अपने जो है वो मुझे प्लस माइनस की कहानियां हैं कि मुझे समझ में आए। आधा शुमार के गठजोड़ है ये सर, ये घुमाने वाली बात है, ये सब चीजें करने वाली बातें। हम टैक्स देते हैं उनकी अयाशियों के लिए, वो मुल्क चलाते हैं कर्जा लेके, हम लगान दे रहे हैं सर, हम लोग लगान दे रहे हैं, बाहर निकलते गोली पड़ती है। अब बात यह है कि अब गोली के साथ अब तो डंपर चढ़ता है। आप पिछले 3 महीने में एक्सीडेंट में 200 से 250 अमवात हुई है सर, अब उसका कोई पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं। मैं इस पे थोड़ी सी एडिट कर दूंगा आपकी बात कि आप भी रोड पे सड़क पर चलते हैं कि क्या सारा कसूर उस डंपर वाले का होता है या सारा कसूर उस ट्रक वाले का होता है? हमारा आपका कसूर नहीं होता। नहीं, जिस तरह की मोटरसाइकिलें सड़कों पर चल रही होती हैं और रिक्शे वाले चल रहे होते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो सही चल रहे हैं? पहली बात है कि रोड के ऊपर चलना इतना मुश्किल हो गया है कि अभी आपने एक अपने फरलांग गए नहीं होते तो 2 गड्ढे आ जाते हैं। बिल्कुल, रोडों का आप हशर देख लें। बिल्कुल। तो बात असल में ये है कि जो बाइक वाला है ना वो उन गड्ढों से बचता हुआ जा रहा है, वो रिक्शा वाला उन गड्ढों से बचता हुआ जा रहा है। हमें गाड़ी जो चलानी पड़ रही होती है ना उनके हिसाब से चलानी पड़ रही होती है। हमें यहाँ पे डंपर को भी देखना है। बात है कि एक्सीडेंट जो भी रोड पे हो रहे हैं उसमें कसूरवार दोनों ही हैं, मारने वाला भी और मरने वाला भी। नहीं, कसूरवार वाला क्यों नहीं मर रहा? कसूरवार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने खराब किया है वो है। नहीं, वो तो उनको जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही है वहां पे एक्सीडेंट नहीं हो रहे, वहां बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आप डिफेंस चले जाए, क्रिस्टन चले जाए, आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं। कसूरवार जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अगर अदालतों में फैसले ऑन द स्पॉट हो जाए, शरीयत के हिसाब से हो जाए तो नहीं हो। एक बंदा निकल के बाहर 4 दफा बाहर आके फिर खेती मारते है, फिर जाता है, फिर जमानत पे आ जाता है। वो डंपर वाले को पता है अगर मैं मार भी दूंगा मेरा क्या कौन बिगाड़ेगा कुछ। अच्छा, फिर जो टाइमिंग है डंपर की, उस टाइमिंग के अलावा पुलिस छोड़ती कैसे है उन्हें? एक बात समझे थे कि रात 12 बजे के बाद होना चाहिए, 11 बजे चाहिए। अब उसको 12 बजे 1 बजे के बाद करें, 2 बजे होना चाहिए, 2 बजे होना चाहिए। रात के 1 बजे तक आपका ट्रैफिक जो है रोड पे ज्यादा रश होता है 1 बजे। अच्छा, उनका टाइमिंग है ना, टैंकर की टाइमिंग है, ये 24 घंटे चलता है। सिर्फ डंपर में उसकी टाइमिंग है। डंपर पे आपको बैठ के ना कार नजर नहीं आएगी, मोटरसाइकिल वाला बेचारा कहाँ से नजर आएगा? ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। बात ये है कि देखें, बात ये है कि ये बहस चल जाएगी। बस सिंपल सी बात ये है कि जिम्मेदारियां सबकी, जिम्मेदारियां मोटरसाइकिल चलाने वाली की भी है, जिम्मेदारी गाड़ी चलाने वाले की भी है, टेम्पर वाले की। लेकिन बात वो है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमारे जो भी आलम साहब ने कही ना, ये 100% दुरुस्त बात है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस, सजा और जजा नहीं है। सजा मिलेगी तो यकीनी तौर पे जो है, लेकिन हमारा क्या होता है कि अमूमन लोग जो है कसास और दीद के तहत जो है ना वो मामलात कर लेते हैं। कसास और दीद की जरूरत है, सजा नहीं होती है। कसास दीद का सीन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपने कजन, मेरा बच्चा बिल्कुल 14 साल का, उसको चिपका दी, उसको पकड़ा ड्राइवर को थाने में, वो अपने बंद हुआ। वो ड्राइवर कौन था पता है आपको? वो उसके साथ जो अपने जो ड्राइवर जो था वो साथ बैठा हुआ था और वो उसको सिखा रहा था। क्लीनर होगा, वो सिखा रहा था उसको, यानी कि वो क्लीनर भी नहीं था सर, वो सिखा रहा था उसको। और फुल लोडेड ट्रक था वो मट्टी से भरा हुआ ट्रक था।
बात यह है कि उसके बाद हमने जब चीजें करी तो फिर हमें आया कि यार आप लोग परेशान हो गए, आप लोग शरीफ लोग हो, आप लोग परेशान हो गए, ठीक है आप लोगों को धक्के लगेंगे, आपको ये चीजें होंगी। उसने बोला भाई मेरा बच्चा चला गया, मुझे कहीं कोई बात को चीजें नहीं करनी। सर 48 आवर्स में वो अपने ड्राइवर बाहर आ गया था। अब उसने कोई के साथ दी उस खानदान को नहीं दी। ये मैं आपको बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बात बता रहा हूँ, ठीक है। बात असल में ये सर कि कानून है पैसे वाले के लिए और गरीब के लिए जो है वो सारे का सारा सब कुछ जो है ना वो समझेंगे। गरीब के लिए सिर्फ सजा है। सजा। आप मुझे बताइए कानून सिर्फ सजा है। आप लोग जो अपनी दुकानों के सामने फुटपाथों पर जो वो स्टॉल लगा देते हैं उसके मुतालिक क्या कहेंगे? सर गलत है। हम तो पथारे हटवाते हैं भाई, वो तो आपकी पुलिस लगाती है। लोग ये कहते हैं कि जनाब पथारे जो होते हैं जो दुकान के सामने लगे होते हैं वो दुकानदार के होते हैं। सर एक टाइम था, देखिए मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक कुछ ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं कहीं किसी भी नहीं जाइएगा। जो कराची से बाहर वाला था ना वो पहले पथारा लगाता था और दुकानें जो होती थी ना कराची वाले की होती थी। आज चीजें चेंज हो गई, आज कराची वाला पथारा लगा रहा है और जो कराची के बाहर वाला ना वो अपने वो वहां पे वो चीज है। ठीक है। बात यह है कि मैं खुद इन सारी सब चीजों में रहता हूँ, हर जगह में जाता हूँ, घूमता हूँ, सब चीजें मुझे मालूम होती पता होती है, मैं पूछता हूँ, उसका आईडी कार्ड भी चेक करता हूँ। सर 60% वो लोग हैं जिनके पास काम कारोबार रोजगार नहीं है। सर वो बेचारा क्या करेगा? वो रोज के 1000 रुपए दे के अपना वो लगाता है और मुश्किल से 500-1000 रुपए वो बेचारा घर लेके जाता है। सारे देखिए तो बेरोजगार हो जाएंगे ये सारे के सारे। पूरा एक साइकिल एक सर्कल है। आप इनको रोजगार दें, ये नहीं लगाएंगे पथारे। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि देखें सवाल ये थे जो चीज गलत है वो गलत है। सर आजकल सही गलत की चीजें बढ़ गई हैं, हलाल हराम पथारा जो है ना आप मार ले बस। सर 2 करोड़ की आबादी का शहर, 4 करोड़ लोग, लेकिन गवर्नमेंट कहती है 1.5 करोड़ है। सर 1.5 करोड़। सर मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, टोक्यो नंबर 1 है, कितनी है उसकी आबादी? 3-3.25 करोड़। यहाँ पे अगर आप अगर गिनेंगे भी ना तो 3.5 से कम नहीं है यहाँ पे लोग, बिल्कुल होंगे। लेकिन बात यह है कि जिसको गिना है ना उन्होंने कि 180 जो उन्होंने गिने वो कराची वाले ही हैं, लेकिन अब इस 1 साल के अंदर कितने लोग बाहर चले गए? कराची वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने उनको जो कि दीगर इलाकों से आके या नौकरियां करते हैं, यहाँ की यूटिलिटी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ की सड़कें इस्तेमाल करते हैं, या पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका जो मुस्तकिल पता है वो कराची से बाहर है, तो उसलिए इसीलिए उन्होंने उसको कराची वाले नहीं मानते। मैंने यही तो बात बोली, मैंने कहा सही गिना है, अगर 180 गिना है तो वो सही गिना है, क्योंकि यही कराची। देखें फैसल भाई जल्दी से आप भी फरमा दीजिए। बात है कि अपनी आईआईटी खत्म कर दें, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान पे रहम खाएं, और इसकी आजादी जो है ना वो एक नेमत है, और खुद भी जो है वो जिस तरीके से आजाद वो अपने चल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। ऐसे हम लोग को भी थोड़ा सा काम करने दें, आजाद छोड़ दें। टैक्स तो पहले भी दे रहे थे, तो अपने क्या नाम है उस पर भी इंडेक्स कितने पे था, आज 1.25 लाख पे इंडेक्स हो गया है, तो टैक्सेस आ रहे हैं ना, सब चीजें हो रही है। कौन सी ताजिर दोस्त नहीं मिला तो उनको जो है वो अपने हुकूमत बंद हो गई, कौन सा क्या मसला हो गया, क्या चीजें हो गई। इसका मतलब है सब चीजें सही है, ठीक है, खामखाई में तंग करना है बस, और कुछ भी नहीं। जी जल्दी मोहब्बत वतन हम सब लोग हैं, मोहब्बत वतन का इज़हार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो नाफिज करते हैं पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ऐसी पॉलिसी नाफिज करें जिससे कि यकीनी तौर पर सबके लिए वो काबिल अमल हो। बिलाल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।